Welcome to the channel. Today I am going to give the answer of chapter number 2.6 Chasing the Sea Monsters from 7th standard English बाल भारती. Moving to the exercise. तो स्टूडेंट्स आपको राइट हैंड साइड पे मीनिंग्स दिए गए हैं. फ्रिगेट एंड अनअर्थली. तो अनअर्थली का मतलब होता है स्ट्रेंच, नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ. तो ऐसा कुछ जो ज़मीन पर नहीं पाया जाता हो. एंड फ्रिगेट का मतलब होता है स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन वॉर. छोटी सी शिप होती है जो वॉर के लिए यूज़ होती है. एंड थिंक एन आंसर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर. तो इसका आंसर है द नेम ऑफ द नरेटर इज़ प्रोफेसर एरोनेक्स. सेकेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप. The name of the ship is the Abraham Lincoln. Third, at what time is this event taking place? Answer, the event is taking place at night. Students, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दे रही हूँ. अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी. आपको देखो राइट हैंड साइड पे नीचे आपको मीनिंग्स दिए गए हैं. ल्यूमिनियस, फियरसम एंड क्रीव का. तो आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं एंड आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं. ठीक है. Next question, guess and write the meanings. So first one is Aston to port. पेज नंबर 48 पे इसका रेफरेंस ले सकते हैं. नाउ see the meaning. Aston to port is to the back and left side when you are facing the front of the ship. Second, blunderbusses, shotguns that have a barrel which is larger at the end. Third, duck guns, guns with exploding bullets that can kill even the most powerful animals. Fourth, harpoons, a long, sharp weapon attached to a long rope and thrown by hand or shot from a gun. Next, again आपको guess the meaning दिए हैं. Then first one is cannoneer. So the meaning of cannoneer is a large, powerful gun or one who fire cannon. Second, harpooner, one who handles the harpoon. Third, enormous, very great, hideous, terrible and horrific. Now next is guess what order the commander must have given. Answer, he must have ordered to fire the cannon. See the questions from workshop. First is from the passage find all the words and phrases used to describe the monster. तो monster के लिए जो भी words यूज हुए हैं पैसेज में, लेसन में, तो आपको वो फाइंड आउट करके लिखना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आंसर दिया है, आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं, बट फर्स्ट आपको खुद से फाइंड आउट करना है. Second, from group of 4, find all the references to time given in the passage, then make a chart to show the events described in the passage along with the time when they occur. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए, all night long the crew stayed on their feet. तो इसी तरह से आपको near midnight at 12:53 और ऐसा आपको बनाकर लिखना है like this. So this is how your answer will come. और अगर आपको इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं. Now see the question number 3. How long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. तो आपको ये पैसेज रीड आउट करके फाइंड आउट करना है कि आपको कितना टाइम लगा इसको पढ़ने में. ठीक है. नेक्स्ट 4, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द लेबल्स केयरफुली, देन मैच द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. सो आंसर इज फर्स्ट का आएगा आपका ई, ये अपोल स्लंग. सेकेंड का आएगा डी वाला है टॉल अपराइट. एंड थर्ड का आएगा थर्ड बो का आएगा G1, द पार्ट विच इज़ ऑलवेज. एंड फिफ्थ का आएगा C, सिक्स्थ H, सेवेंथ का आएगा F एंड एट्थ का आएगा आफ्टर. डेक का आएगा I वाला, एन ओपन डेक नियर द बैक. एंड नाइन्थ का आएगा 4 वाला B1, द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ शिप. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं फुल डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना आंसर्स को. Question number 5. Form groups of 4 to 5. Read the following sentences aloud using your imagination and with the help of group discussion. Write other situation in which the sentences can be used. So students, this is how your answer will come. Next, question number 6. Find the different units of measurement mentioned in the passage and get more information about them from the internet.
नंबर 7 लैंग्वेज स्टडी। सो आपको यहाँ पे वर्ब को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लग जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक द बॉल, तो किक द फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, और इसमें वर्ब हुआ किक। एंड अलग देखो नेक्स्ट वाला है इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि व्हेन अ वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वी लव लाउडली, द वर्ब लव इन दिस सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। लव, वॉक, क्राई आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जिसमें अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लग जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, और जिसमें नहीं लगेगा उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव। और अलग से एग्जाम्पल दिया आपको नीचे, बर्ड्स फ्लाई इंट्रांजिटिव हुआ, चिल्ड्रंस फ्लाई काइट्स तो ट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना काइट्स जो हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लाई के साथ फ्लाई के एक्शन हुआ, वर्ब हुआ, और फ्लाई के साथ काइट्स लगाया यानी ऑब्जेक्ट, तो वो ट्रांजिटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।